Hello friends, welcome to Acharya 90 FM, your own radio. In our guest interview today, we have invited Dr. Vijay Keswani ji. Vijay sir, welcome to Acharya 90 FM radio station. Thank you, Tejaswini. Thank you for inviting me. Yeah. Let me, friends, give you a small intro about Dr. Vijay Keswani. He is a direct disciple of Sri Mahavatar Babaji. He has achieved his doctorate in Vastu Shastra and astrology, holds a record in World Book of Records, London, and he has appeared on Zee TV, Care World, and many other cable networks. Recently, at present, he is doing a Vastu Astro series with Tata Sky, Airtel TV and Dish TV. So today you are on Acharya 90 FM radio station. Thank you for having me. Yeah, so we will be knowing more about astrology and Vastu Shastra and his journey of 30 years in this field. So first, I would like to ask a personal question. How do you started with your journey? How you how you thought of going or learning, pursuing this knowledge of Vastu Shastra? I belong to a business class family, but I was intuitive by birth, so I was knowing that I am not doing that business. I was very clear about that. I got admission in MBBS but left it in the middle. That was my dream. So one of my gurus has told me that you will not become a doctor, but then you will be healing people. And in the later stage of your life, you will become a doctor. So I was very much, you can say it was a tower moment for me. It's like everything came crashing for me after one of my gurus told me this. And that exactly happened. Out of nothing, I just left my studies in the middle, and I was doing some odd jobs since from a very high and good zone, suddenly some incidents happened which had a financial crunch on us, and because of that only I wanted to know that why my father was being ditched by his own family members, like his brothers and whatever the people were connected to him. So I wanted to know about what I should do where I could decode this, why this happened. When you are doing all good karmas, then why certain things happen to you? And when my life goal was to become a doctor, then why I suddenly left it in the middle and doing something else? So these are the questions. आपके मन में इस तरह के questions आते रहते हैं, right? कि आप अभी बहुत ही अमीर हैं and suddenly you become zero. तो क्यों? तुमने ऐसा क्या कर दिया लाइफ में? यू आर डूइंग ऑल द राइट कर्मास, आप पूजा पाठ सही टाइम पे करते हो, सब कुछ करते हो, तो आपके जीवन में ये घटना, चाहे वो आपके पिताजी के साथ घटी हो या किसी के भी साथ घटी हो. आई वॉज ए स्टूडेंट एट दैट टाइम, राइट? तो उस वक्त ऐसा क्या हो गया और जिसके वजह से हमको ये दिन देखने पड़े. सो आई वॉज ऑलवेज ऑन द लुकआउट टू सीक द आंसर्स, बट आई वॉज नॉट गेटिंग एट दैट टाइम. So because of that, my journey started towards South India, and then I learned their first Vastu, and then I came into astrology. That also I learned there, and from many other masters in the North India as well, from different sectors as well, and I continuously saw. And many people say that कि आपका जो काल सर्प दोष है वो 45 साल के बाद आपके ऊपर नहीं लागू होता. तो आई मस्ट टेल यू कि मेरे पिताजी 46 के थे जब उनको काल सर्प दोष लगा. अच्छा. तो इसका अब आप क्या कहेंगे? तो इसलिए मैंने वो डिकोड किया कि ऐसा नहीं है कि वो दोष चला जाएगा, उसके बैड इफेक्ट्स को आप कम कर सकते हो, लेकिन किसी चीज को आप हटा नहीं सकते. अगर आपके कुंडली में कुछ पड़ा है तो वो आपका पिछले किसी जन्म का ग्राफ है. और उसको हम या तो कम ज्यादा कर सकते हैं थ्रू डोनेशंस, थोड़ा पूजा पाठ, थोड़ा अच्छे कार्मिक पैटर्न्स, है ना, लेकिन उसको आप पूरी तरह से डिलीट नहीं कर सकते. राइट? सो दैट वाज अ थिंग व्हिच आई केम टू नो. Great. And it was an enlightening experience for me. Yeah.
what is exactly in, we say we are into science era and all, so, but still then we feel there is an importance of astrology, numerology, graphology. So as a, from your point of view, what do you think, what is the need of all these fields? See, Vastu, astrology, palmistry, face reading, numerology, all Shastras are truth. Yeah. But the practitioner may be wrong. ठीक है, because of few wrong practitioners, हाँ. there is a bad name given to it. And now people are becoming more aware because आज learned people हैं, उन्हें पता है कि कौन सा व्यक्ति फेक है, कौन सा genuine है, और सब सोच समझ के ही they come to us for help. और आप ये देखो ना कि आप बहुत मेहनत करते हो, you work 24/7, a laborer works more than us. तो उसका राजयोग कहाँ चला गया? वो क्यों नहीं बहुत टॉप पोजीशन पर पहुंचता? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि डेस्टिनी को किस तरह से डिकोड करना है, या किस तरह से उसे गाइडेंस लेकर के आगे बढ़ना है, चाहे वो किसी तरह के जेमस्टोन के फॉर्मेशन में हो, चाहे वो किसी डोनेशन के रूप में हो, किसी पूजा पाठ के रूप में हो, है ना? तो वो कुछ ना कुछ हमें उसका पर्याय या ऑप्शन तो निकालना होता है जिससे कि उस व्यक्ति को रिलीफ आए, उसके जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं वो किसी पॉजिटिव फेज पर आ जाए. Yeah. So one can make his life more brighter when he comes or meets you or any other person. Yeah. So next question could be, now you must be having dealing with all the types people, like one businessman is है, कोई celebrity है. Yes. So different people from different fields. So most of the businessmen and celebrities are more curious about astrology, vastu and all. They are more curious because they want more name and fame. They are very hungry about more. So that's why they want more wealth, more love, more attraction. They want more good looks, है ना? So हर चीज के बारे में वो ज्यादा aware रहते हैं. More better health, right? Yeah. So that's why they are more curious. Yeah. So how you treat a businessman? How you deal with a businessman who wants to grow in his business? Okay. First of all, we tell them to show us their own vastu, whether it is a house or a corporate or a factory, and at the same time we tell them that show us your home as well, wherever you live. The thing is, your entire life is divided into 33.3%. I will tell you how it is. Like if you say give 100% marks to your life, 33.3% is your hard work, the karma that you do. 33% is the prarabdha, that is with the stars which you are born, and 33.3% is your environment. आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हो, उसी तरह से कैसे लोगों के साथ तो रह रहे हो, लेकिन कौन से environment में आप जी रहे हो. That place may be negative, that place may be having some vastu doshas, because of that you are going through a lot. आपने ऐसे कभी देखा होगा कि कभी कभी हमको पहले के जमाने में बहुत लोग कहते थे कि इनके पास तो इतना धन है कि 7 पुश्तें बैठ के खाएंगे, और पता चलता है यही पुश्त ने सब पैसा उड़ा दिया, and they are now in the debts. Why they are into debts? Because a particular location, a particular house may be jinxed, or some incident must have occurred. Something may be a curse, we don't know, or some vastu doshas may be there. So that's why we are doing the analysis with the aura scanners nowadays. हम intuitive तो पहले से हैं, लेकिन उसका मैं print out कैसे निकाल के दूं, right? तो इसके वजह से अभी ये जैसे ही latest scientific tools आए हैं, जैसे Lecker Angina is there, then we have aura scanner, with which we can actually measure the energy level of your place, and then we can show the people or the client कि आपके यहाँ नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिव एनर्जी कितनी है, और इसको हम किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं without any demolitions. I specialize, for the last 30 years of my practice, I specialize, I have researched, I have trained lots of students all around the globe, online as well as offline, on this, that बिना किसी तोड़ फोड़ के आप उसी जगह को कैसे हाई वाइब्रेशन जोन में कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे कि आपके पास धन भी आए, पैसा भी आए, खुशहाली आए, घर में सुख शांति से आप रह पाए. Great. And next question could be the youth.
youth people, they have to undergo exams, they have to clear the board, like 10th and 12th board they have to clear, then they have to crack the MPSC or various aptitude test. Yes. So main of the parents also are worried about their children, how they'll pursue, which career they will pursue, and where they'll grow in their career. Yeah. So how you do the career guidance in respect of Vastu Shastra and astrology? Okay, let's first finish with the corporates. एक हाँ. स्टेटमेंट और रह गया था Okay. कि कॉर्पोरेट्स का फिर हम एस्ट्रोलॉजिकली भी देखते हैं कि उनके ग्रह कौन से खराब हैं हाँ. और उसका हम क्या कर सकते हैं निदान, वो चाहे स्टोन के फॉर्मेशन में हो, कोई कवच पहनाना हो, धारण करवाना हो, या किसी तरह की पूजा पाठ या डोनेशंस करवाना हो, या कोई उपाय कराना हो जो उनमें हम कहें कि वीकली वंस यू डू दिस एंड यू विल फील द डिफरेंस इन योर लाइफ। तो उस तरह से हम कॉर्पोरेट्स को ट्रेन करते हैं या बिजनेसमैन को ट्रेन करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की कि बच्चे जो है आज की जनरेशन जो है दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज ऑफ द लॉट्स ऑफ कंपटीशन एंड द सीट्स आर वेरी वेरी लेस इन द कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज। तो उस वक्त पेरेंट्स हमारे पास जब आते हैं, पहले हम उनके होरोस्कोप चेक करते हैं कि उनका जो बुध ग्रह है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है। फिर हम ये देखते हैं कि उनका खुद का जो अस्तित्व है ओवरऑल में उनकी पर्सनालिटी कैसे है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई बच्चा उसकी कैपेसिटी, ब्रेन कैपेसिटी हमें दिख रही है कि ज्यादा है ही नहीं, तो उसको हम फोर्स क्यों करें? हम क्यों कहें कि बेटा और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो? लेकिन बच्चा इंटेलिजेंट है तो व्हाई नॉट टैप इट इन अ प्रॉपर मैनर। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द पेरेंट्स केम टू मी कि वो 2 अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक साथ में बच्चा देना चाह रहा है जो कि ऑपोजिट है, बट वो बच्चा देना चाहता है। तो द पेरेंट्स वर वेरी नर्वस, द चाइल्ड इज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मैं कर सकता हूँ, एंड पेरेंट्स आर हैविंग देयर ओन ब्लॉकेजेस कि नहीं हमारा बच्चा बेचारा कैसा करेगा। जब बेटा बोल रहा है प्लीज मानो, समझो बच्चा उतना कैपेबल है, और हमने जब उनका हॉरोस्कोप देखा ही वाज 200% कैपेबल, देन व्हाई नॉट। एंड आप देखेंगे उनके जब एग्जाम्स हुए वो दोनों में एक्सेल की। अभी उनकी मर्जी है उसको जिसमें भी जाना है, तो ये अब चूज कर रहा है, बच्चा चूज कर रहा है। ऐसे नहीं है कि आपके बच्चों के अंदर कोई कमी है, लेकिन सही ढंग से टैक्ट चाहिए कि कौन सी दिशा उनको देनी है ताकि उस दिशा में वो जाए। अगर उस दिशा से रिलेटेड जहां जो उन्होंने चूज किया उससे दूर दूर तक कुछ पता ही नहीं चल रहा कि नहीं ये नहीं करेंगे, तो बाद में आप जबरदस्ती बच्चे को बोलो कि आज ये पर्टिकुलर करियर इज गोइंग ऑन अ गुड फॉर्म, तो आप वो ही पढ़ाई करो बेटा। द पर्सन हैज टू लव हिज वर्क। फॉर एग्जाम्पल आई ब्रीथ वास्तु, आई जस्ट लव वास्तु, आई डू एफर्मेशंस, आई लव माई सेल्फ, सो आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच एज वेल। तो वो मेरे अंदर से आता है। आई लव माई वर्क सो दैट यू कैन सी इन माई आईज, इन माई वर्क, इन माई क्रेजीनेस। लेकिन अगर आपको पसंद ही नहीं है बट आप वो चीज कर रहे हो तो आप उसमें एक्सेल नहीं कर सकते। फिर आप कहेंगे इसका तो कभी प्रमोशन होता ही नहीं। तो उसमें प्रमोशन क्यों नहीं होता? बिकॉज वो बच्चा जो है आपने उसको जबरदस्ती वो चीज कराई है जो वो नहीं चाहता है या चाहती है। सो हमें पहले बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे आजकल DMRT टेस्ट भी लोग करते हैं ना, पता लगने के लिए कौन सी फील्ड में बच्चे को भेजें, या सो दैट्स व्हाई दे डिसाइड। बट ये भी एक तरीका है कि होरोस्कोप एनालिसिस से भी वी कैन गाइड कि ये उसके लिए सही फील्ड है कि नहीं। और उसके बाद अगर ये सही फील्ड है और उसके अंदर कैपेबिलिटी है, देन वी टेल देम द रेमेडीज जिससे बच्चा जो है वो सब कुछ करे। ऐसे नहीं कि उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं लेना है, घूमने नहीं जाना है, उसकी खुद की जिंदगी सब बच्चों से उसको अलग थलग कर दो, नहीं बच्चों के साथ नहीं घूमना है, डोंट गो आउटसाइड द हाउस, डोंट डू दैट, डोंट फोर्स देम, डोंट क्रिएट अ स्ट्रेस एंड टेंशन। आज आप देख रहे हो कि बहुत सारी सुसाइडल चीजें हो रही हैं, सो दैट इज वेरी रॉन्ग। डोंट फोर्स योर चिल्ड्रन फॉर एनीथिंग। उनके साथ एक पहले तो वो जो बहुत डरा कर रखा हुआ है ना, एक हिटलर की तरह हम हो जाते हैं बच्चों के साथ। बिकम देयर फ्रेंड्स टू नो, वो आपको सब कुछ बताएंगे। अगर आप दोस्ती करोगे उनके साथ तो दे विल टेल यू एवरी सीक्रेट ऑफ देयर लाइफ एंड यू कैन गाइड देम, मोल्ड देम प्रॉपरली। अगर आप उनको बहुत स्ट्रिक्टनेस, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि एक मर्यादा के दायरा नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स फादर एंड सन or mother and son or children, there has to be a certain wheel, certain एक बाउंड्री जरूर होनी चाहिए मर्यादा की, लेकिन इतना भी स्ट्रिक्ट मत हो जाइए कि वो सफोकेटेड फील करे और वो आप
को बताने की जगह अपने फ्रेंड्स को शेयर कर रहे हैं, हाँ. या वो किसी खराब आदत में पड़ रहे हैं, सो इट इज बेटर कि उनको उस लेवल पर लेकर आइए, टैप देयर पावर. आपके बच्चे जो हैं, न्यू जनरेशन आर ऑसम, लेकिन अगर आप जबरदस्ती उनको बोलोगे मोबाइल मत उठा, डोंट डू दिस, बिकॉज दिस इज अ नॉर्म. हालांकि प्रॉब्लम वाली चीज है, ऑल दीज मोबाइल्स आर वेरी गुड अगर उसको सही इस्तेमाल करो, लेकिन पूरा दिन अगर आप एडिक्ट हो जाते हो, तो देन इट इज लाइक योर माइंड इज ओनली लिमिटेड टू दोज पर्टिकुलर एप्स जो आप देख रहे हो, दैट बिकम्स योर वर्ल्ड. अब उसके आगे कुछ देख ही नहीं पाते हो सकता है आपके वर्ल्ड में बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें चल रही हो, बट यू फोकस ऑन समथिंग विच इज बीइंग शोन टू यू, तो आप वहां तक लिमिटेड हो जाते हो. दिस सेम थिंग लागू होता है हमारे टीवी चैनल्स पे, चाहे वो आप नेटफ्लिक्स में देखो, वेब सीरीज में देखो, बहुत सारा उसमें कुछ भी दिखाया जाता है तो हम उसमें घुस जाते हैं. वी आर टोटली इनटू दैट मोल्ड. तो उसमें से निकलना, तोड़ना बहुत जरूरी है. देयर इज टू बी सम डिस्कनेक्ट विद दैट. And before exams also, some parents must be approaching you and taking your guidance how to prepare for the exam, how my son or daughter. We give them different secret magical codes. अभी magical codes इसलिए because those actually gives so beautiful results. But ऐसे मैं किसी को promise नहीं करता कि मैं कोई magic कर रहा हूँ, because I am against all these words. लेकिन लोग कहते हैं कि हमारे testimonials में कि आपके यहाँ पे हमेशा magical results मिलती हैं, इसलिए my brand is Vastu Magic, Astro Magic, and all magic word is behind that. And many of the people tell me that you are a Harry Potter of in today's time in our life. So that's why I have this affinity for this magic word. Otherwise, I don't like the word only. But the thing is, because beautiful results come out of it. And we work on body, mind, soul level. We guide them. We just don't become an astrologer. आप ये नहीं कराते हो तो ऐसा हो जाएगा and वैसा हो जाएगा. No. This is a problem. This is a solution. So focus on the solution, do it, and see the results. That way. After career comes the marriage part of our life, the relationship status, then the marriage, then the groom and the bride matchmaking. And in today's time, Tejaswini, I would just say कि बहुत ही खतरनाक समय चल रहा है. Because of these mobile phones, the relationships are becoming like just block and unblock. तो उसमें इतने लोगों की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो रही है. लेकिन पहले का जमाना ये था, वी यूज्ड टू वर्क ऑन द रिलेशनशिप्स. रिलेशनशिप एक इबादत की तरह होती है. इट इज नॉट समथिंग कि आप कोई चीज को खरीद कर लाए हो, या वो आपके लिए कोई इस्तेमाल करने वाली चीज नहीं है. तो वो दिल से दिल का एक संबंध है, और उसको उसी तरह से कंडीशन करना आवश्यकता है. लेकिन आज की जनरेशन ऐसे है कि अगर आपका आपस में थोड़ा भी किसी बात पे सिर्फ कुछ झगड़ा हो गया, यू वेंट आउट, यू हैड अ गुड मोमेंट्स, एंड सडनली यू जस्ट डिडंट लाइक समथिंग, और आप सीधा आके उसको ब्लॉक कर देते हो, उसको अपने जिंदगी से तोड़कर फेंक देते हो. बिलीव मी, जिस व्यक्ति को आप ब्लॉक कर रहे हो वो 1 सेकंड के अंदर 1000 मौतें मरता है. दिस इज व्हाट द पीपल कम इन माय ऑफिस एंड क्राई. मैं प्यार में नहीं पड़ा, बट उनको देख के मैं रोने लग जाता हूँ. द थिंग इज बिकॉज 6-7 फुट के लंबे चौड़े एंड जिम से बने हुए जो बंदे होते हैं, वो आकर हमारे पास बिलक बिलक कर रोते हैं. इवन द गर्ल्स बॉयज बोथ, मैं अगर देखूं तो दोनों का रेशियो वैसे ही है. तो आप ऐसे मत समझो कि जो बहुत ही दिखने में स्ट्रांग है मर्द हैं वो नहीं रोते हैं, वो उल्टा ज्यादा रोते हैं. सो इट इज लाइक, मैं यहाँ पे तो हंस रहा हूँ, लेकिन चीज है कि हमें इसको समझना है. आज की जनरेशन को एडुकेट करना है कि आप जिसके साथ भी कुछ भी मोमेंट्स बिताते हो, दैट इज टू बी चेरिश्ड, एंड उनको आप उसी तरह से ट्रीट करो, ना कि आप सिर्फ उनको ब्लॉक कर दिया, उनकी जिंदगी को आपने तबाह कर दिया, एंड यू आर इन अ हैप्पी जोन. रिमेंबर दिस, कर्मा इज फॉर रियल. और ये कर्मा हमेशा किसी न किसी रूप में आज कल परसों आपको हिट जरूर करेगा. तो अपने जीवन को बेहतरीन बनाओ, अपने आप को भी समझो. एंड मैनी पीपल डू इज के उनके दोस्तों यारों ने उनको भड़का दिया,
किसी के लिए, तो आपने रिलेशन कट कर दिया। आपकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने आपको उसके बारे में कुछ बोल दिया, बिकॉज दे डोंट वांट टू सी बोथ ऑफ यू हैप्पी, राइट? तो आप बस एक अपना ही या खुद के आपके अपने ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं, और आप उसको बोल देते हो नहीं तू तो ऐसा है या तू तो ऐसी है। मैंने देखा है फ्रॉम, इट इज नॉट जस्ट अबाउट लव, यहाँ तक कि अभी लोग जो हैं अपने मॉम डैड के साथ भी GF BF की तरह बिहेव करने लग गए हैं, उनको भी ब्लॉक कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। अगेन योर फ्रेंड्स, जो लंगोटिया यार या दोस्त बोलते थे ना बचपन से जो आपके साथ में है, उनके साथ भी लोग इस तरह से बिहेव करने लग गए। हाँ, तो उनको बस ब्लॉक कर दिया, खत्म बात, तू अभी मेरी जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करता। सो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। अंडरस्टैंड, मेक द थिंग्स हैपन, लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल एंड दैट हैज टू बी ब्यूटिफुल विथ योर पीपल हु रियली केयर फॉर यू। और जो आपके साथ सेल्फलेस चलते हैं आप उनको धक्का दे देते हो, और जो आपके साथ गेमिंग करते हैं उनको आप अपना देते हो। तो यही आजकल का समय है, और उसके वजह से आप देखेंगे कि हर नुक्कड़ पे, हर कोने में, हर घर में रिलेशंस टूट रहे हैं। सो उसको संभालना बहुत जरूरी है, अपने दिमाग को ठीक रखना है, ताकि हम समझ सकें कि ये मेरे खुद के कहीं थॉट पैटर्न्स तो नहीं है जिसकी वजह से मैंने बस उनको मान लिया। आप अगर सही है 100%, तो आप अपने अडिग रहो, सामने वाले को जो सोचना है वो सोचे, लेकिन आज कल या परसों उसको रियलाइजेशन तो होगा। लेकिन याद रखिएगा, रियलाइजेशन अगर देरी से हुआ तो वो व्यक्ति आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए एग्जिट कर देगा, तो लॉस आपका है। तो याद रखिए, उसी वक्त आप उन्हें बस पकड़ लो बाहों में, एक प्यार की झप्पी दे दो। वट एवर द रिलेशंस में प्रॉब्लम है उसको उसी भी तरह से आप ठीक कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं टू इंट्रोड्यूस द रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स इन योर साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन वास्तु, विच कैन रियली मेक द रिलेशंस बेटर। Great. It's a great experience listening to your experiences. And now I would like to ask you one question is what exactly the healing modality what we were discussing. What is exactly the meaning of healing modality? There are many healing modalities around the globe like Reiki, pranic healing, theta healing, magnified, Melchizedek, access bars. There are many I know only Reiki. And I am a pioneer of Himalayan yogic healing, which is my own healing modality, and I was blessed by the Siddhas and yogis in Himalayas in 2004 and 2006 when I had visited Himalayas, and I was blessed with that. So healing is a form of you can say sitting at one place and focusing on certain it can be in the form of meditation, it can be in the form of some symbols where you have to connect. First, your guru or the teacher will attune you. Now, attunement is like शक्तिपात जैसे कहते हैं, उस तरह से एनर्जी ट्रांसफरेंस होता है। फिर उसके बाद वो पर्टिकुलर वो एनर्जी आपके शरीर में से प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। देन उन सिंबल्स को आपको याद करना है, या कुछ एफर्मेशंस को याद करना है, या पर्टिकुलर पॉइंट या जोन्स पर आपको फोकस करना है, जिनके द्वारा आप इस एनर्जी को पूरे यूनिवर्स में चैनलाइज कर सकते हो, स्प्रेड अप कर सकते हो। यह हीलिंग जो है वह आप किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, अपने हीलिंग को बेहतर बनाने के लिए। यानी शरीर की हीलिंग क्षमता पहले से ही होती है, लेकिन उसको आप एनहांस कर सकते हो। डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, वो तो लेना ही है, ठीक है, क्योंकि मेडिसिन कम्स फर्स्ट, साइंस कम्स फर्स्ट। तो वो लेने के बावजूद आपको वो प्रोसेस को फास्टर करना है। तो जो लोग 2-3 महीने में ठीक होने वाले हैं, वो 1 महीने में ठीक हो जाते हैं। उनकी हीलिंग कैपेबिलिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स मोर बेटर। सो अ हीलर कैन सेंड द हीलिंग थ्रू द सिंबोलिज्म्स और सर्टेन चैंट्स टू एंटायर वर्ल्ड, वो चाहे आप कितने भी दूरी पर हो। उसके लिए डिस्टेंस, टाइम, स्पेस महत्व नहीं रखता, वो ईथर में से भी पास ऑन होती हैं। जैसे मान लीजिए एक सैटेलाइट है, वहां की ऊर्जा हम तक कैसे पहुंचती है? रेडियो वेव्स के थ्रू, बट इट इज कमिंग थ्रू ईथर। ईथर मतलब नथिंगनेस, ठीक है ना, लेकिन कुछ है
फिर भी जहां से वो ऊर्जा आती है, वो एनर्जी आती है, हम तक सिग्नल्स पहुंचते हैं, उसी तरीके से एक हीलर जो है उसे आप सैटेलाइट मान लो, वहां से वो एनर्जी जाएगा, अलग अलग लोगों को हील करेगा ऑन बॉडी, माइंड, सोल। इससे बिजनेसेस को भी बढ़ाया जा सकता है, कॉर्पोरेट्स के बिजनेस को और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उनके स्टाफ को एनर्जी बेच करके उन्हें और ज्यादा एक्टिवेट एंड मोटिवेट किया जा सकता है। प्लस हमारे जीवन में बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। लव में अगर है, रिलेशनशिप की बात करें तो दो लोगों के बीच में रिलेशंस को इम्प्रूव किया जा सकता है, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी ठीक किया जा सकता है। Oh, really? Okay. Now I would lastly I'd like to ask you one question is that India is a pioneer of Vastu Shastra, astrology, all these fields. So, सभी शास्त्र की उत्पत्ति हमारे भारत देश में ही हुई है, हमारे सनातन धर्म में ही हुई है। Yes. So now where does India stands and how other countries look upon India at this present situation? I would say with the beautiful efforts of Prime Minister Narendra Modi ji, उन्होंने जो एफर्ट्स दिखाए हैं उससे हमारे भारत की ओर पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह की प्रैक्टिसेस हमारे भारतवर्ष में होती हैं, किस तरह से हमारे रिचुअल्स, हमारे शास्त्र लोगों की जिंदगी को बेहतरीन बना रहे हैं। आपने बहुत सारे अलग अलग अखबारों में हॉलीवुड के एक्टर्स को भी आकर के महामृत्युंजय जैसी पूजा करते हुए देखा होगा, द बिग सेलिब्रिटीज। सो फाइनली द थिंग इज अवेयरनेस, और अवेयरनेस पीएम मोदी जी ने बहुत ही भली भांति पूरे वर्ल्ड में लोगों के सामने रखा है। सो वी हैव टू बी प्राउड ऑफ अवर प्राइम मिनिस्टर दैट ही हैज पुट सो ब्यूटीफुल एफर्ट्स, जिसके कारण लोगों तक ये चीज पहुंच रही है। लोगों के अंदर और पूरे दुनिया में भारत की एक नई छवि उमड़ कर आ रही है। बहुत सारा टैलेंट, बहुत सारी न्यू रिसर्च इज बीइंग डन इन इंडिया जो पहले कभी नहीं हुई थी। तो पूरी दुनिया बदल रही है, हमारा देश बदल रहा है। इट्स बिकमिंग मोर बेटर एंड पॉजिटिव। Yeah, and also we will be looking forward for the bright future of astrology, Vastu Shastra, and all the fields you are having. Now, I would like to ask you one last question. What is the future of all these fields when you're practicing? See, we are trying, like I along with a few people, we are trying to start some initiative. And अगर भारत सरकार ने हमको परमिशन दी तो वी कैन स्टार्ट अ यूनिवर्सिटी ऑल्सो, वेयर वी विल बी टीचिंग ऑल दीज शास्त्रस इन अ प्रॉपर मैनर। इन साउथ इंडिया बहुत ही छोटे लेवल पर, लेकिन गुरुकुल स्टाइल ऑफ लर्निंग इज देयर। तो अगर एस्ट्रोलॉजी में मान लीजिए कि आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए और फिर दूसरे के पास गए, तो वो उनकी प्रिडिक्शन सेम होती है। अगर आपको किसी ने पुखराज धारण करने के लिए कहा तो सभी वो बोलेंगे। यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज हर किसी की अपनी अपनी स्टडी है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कोई कम है कोई ज्यादा है, आई एम सेइंग इट इज नॉट प्रॉपरली चैनलाइज्ड। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि कोई आपको बोलेगा आप पुखराज पहनो, कोई बोलेगा शनि का स्टोन पहनो, कोई बोलेगा आप पन्ना पहनो, कोई बोलेगा कुछ पहनो। एट द एंड ऑफ द डे द पीपल बिकम टोटली रेस्टलेस। वो आए हैं अपने सॉल्यूशंस के लिए, नॉट द प्रॉब्लम्स टू इंक्रीज, राइट? तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए कोई न कोई भारत सरकार की तरफ से हमें अगर इनिशिएटिव मिलता है एंड वी आर एबल टू लॉन्च अ यूनिवर्सिटी विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हम ये सभी शास्त्र अलग अलग जो अपने अपने फील्ड में निपुण लोग हैं उनको सिलेक्ट करके उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। जैसे आयुष डिपार्टमेंट का गठन किया गया है, वैसे ही ज्योतिष के लिए, वास्तु के लिए भी अगर भारत सरकार हमें मदद करे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं और एक दुनिया को नया पैगाम दे सकते हैं कि हमारी जो भी स्पिरिचुअलिटी है, जो भी सनातन धर्म है, उसके अंदर बहुत सारा पावर है। उसको जो अनटैप्ड था अभी तक, वो सही ढंग से टैप करके दुनिया को एक नया आयाम, एक नए मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। Doctor, as besides consulting on the personal consultancy, you also consult from through the media also. Like today, you have come to Acharya 90 FM. Yes. Otherwise, you had already done programs on Zee TV, Care World, and many other cable networks. And now presently, you are having a series on Vastu Astro series on Tata Sky, Airtel TV, and Dish TV. Yes. So, how is the collaboration with all this media?
and how you feeling, how you feel, how is the experience sharing your knowledge on media? It is always mind blowing to share your knowledge with the people and give them the knowledge. जितना हो सकता है मैं अलग अलग मीडिया के थ्रू, मुझे इनवाइट किया जाता है तभी मैं जाता हूँ. आई डोंट अप्रोच एनी मीडिया पीपल बिकॉज वो कहीं ना कहीं से मुझ तक पहुंच जाते हैं एंड देन दे जस्ट जो बातों बातों में नॉलेज शेयरिंग होता है ना, तो उन्हें भी पता चलता है कि कौन कितने पानी में है. राइट, एवरी पर्सन इज सो यूनिक एंड एवरी पर्सन इज सो नॉलेजेबल इन टुडेज टाइम एंड लर्नेड ऑल्सो. तो किसी को आप बेवकूफ नहीं बना सकते हो. तो वो जब हमारे पास खुद ही अप्रोच करते हैं तब हम उनके साथ में मिलकर हम उनको पूछते हैं कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्या लोगों को दिखाना है, किस तरह के प्रॉब्लम से पब्लिक जूझ रही है जिसका हम निदान कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस उनको बताते हैं वहां पे. देखिए, हर कोई जरूरी नहीं है कि इतना पैसे वाला भी हो या किसी की फीस अफोर्ड कर पाए, कहीं नहीं कर पाए, कहीं पहुंच पाए, कहीं नहीं भी पहुंच पाए, बिकॉज डिस्टेंस भी होता है. राइट, अ पर्सन इज इन दिल्ली एंड दे कांट अफोर्ड टू कम डाउन टू मुंबई एंड कंसल्ट मी या कुछ. तो हम तो हर जगह जाते हैं, ऑल ओवर द ग्लोब, नॉट ओनली इन पैन इंडिया, पूरे भारतवर्ष एंड दुनिया भर में हम ट्रैवल करते हैं. लेकिन कभी कभी बहुत सारे अलग फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण वह व्यक्ति हम तक नहीं पहुंच पाता. तो हम कुछ ऐसे भी उपाय उन सीरीज में बताते रहते हैं लोगों को जिससे कि उनका जीवन एक अच्छे मोड़ पर तो आ जाए. राइट, कहीं ना कहीं उन्हें रिलीफ मिले, कहीं ना कहीं उनके प्रॉब्लम से उन्हें निजात मिल सके. वी ट्राई आवर बेस्ट टू मेक देयर लाइफ ब्यूटीफुल. Thank you so much, Doctor, for joining us on Acharya 90 FM. I think this was a really basic interview we conducted today, but I think we will be having some more sessions with you. I would like to invite you on this note to please come to Acharya 90 FM radio station and share your precious knowledge with us. Thank you so much. So friends, today we had Dr. Vijay Keswani sir with us, and he'll be joining us as he promised today. He'll be joining us for more sessions on our radio station. So we will be meeting up in the next segment. Till then, keep listening Acharya 90 FM. Myself Tejaswini signing off for today. Thank you. Namaste. Acharya